All right. This was the question, homework question, direct formula based. But so many of you missed the one point. I told you स्केलर क्वांटिटी है, नेगेटिव चार्ज के लिए माइनस लिखना है. इलेक्ट्रॉन हैज अ नेगेटिव चार्ज. मेनी ऑफ यू नॉट रिटन माइनस, वेरी फ्यू हैव रिटन. So work done is, I mean potential at any point is work done per unit charge in bringing it from infinity to the respective point. पोटेंशियल कितना दिया, 10 दिया है वहां पर. वर्क डन निकालना है. चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज माइनस 1.6 into 10 to the power minus 19. So cross multiply minus 1.6 into 10 to the power, it will become minus 18. On unit also you have to write every time. Many of you are missing the SI units also at the end. SI unit जूल होगा, चार्ज नहीं होगा. यहाँ पे समय पीरियड चार्ज नहीं लिखना है, जूल लिखना है. वर्क डन इज जूल एंड माइनस भी लेना है, ये वाला. So we'll see further. Any difficulty so far? I don't think much problem in this direct. Still you want to ask something, you can just ask at the beginning. पीछे का कुछ है, anything is not understood, this was the derivation done. नहीं, this was the theory part. Potential difference, then we defined the potential difference में क्या आएगा, दो पॉइंट के बीच का वर्क डन आएगा. एंड पोटेंशियल में क्या आएगा, सिंगल पॉइंट पर पोटेंशियल होगा. एंड चार्ज को जब हम इनफाइनाइट से शिफ्ट करते हैं, कैन देयर बी क्वेश्चन take the potential zero at origin? Yes, that can be. That is different from convention, है ना. कन्वेंशन तो यही है, इसी कन्वेंशन से इनफाइनाइट से जितने भी फार्मूले बनेंगे इनफाइनाइट से बनेंगे. the one we made yesterday, one we derived yesterday, in fact, कौन सा था, ये वाला. फर्स्ट पोजीशन विल बी एट इनफिनिटी. तो लिमिट जब पुट की थी ना इनफाइनाइट, तो कन्वेंशनली whatever the formula you will get for point charge or for any other situation, initial point will be at infinity, जहाँ पे potential zero है. But questions to a higher order questions, not in NCERT book, but other questions, competition में particularly JEE advanced, they may give you take the potential at origin zero, then things will be changed. We have to derive it again. यहाँ पर फार्मूले को बेसिक पे जाके सॉल्व करेंगे. We can see that questions later part of this chapter. But conventionally, at infinity potential will be zero. That's what we are following. Formula से भी देखो, when R is infinite, potential comes zero, because that was the convention. So it should be valid. So when you put R infinitive, V comes to be zero. So it is matching with our convention. Okay. Now, previous we have seen इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूले में इनवर्स स्क्वायर लॉ, यहाँ पे इनवर्स बोल सकते हैं, इनवर्स लॉ, स्क्वायर नहीं, but both are inverse, so they are decreasing when R is increasing. Potential जो है, it is decreasing with slow rate because R है इसमें. इलेक्ट्रिक फील्ड में 1/r स्क्वायर है, इसमें नीचे आ रहा है इसमें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड will be dropping fast if you make the R double. So V will be half, E will be 1/4. सपोज R हमने डबल कर दिया तो E हाफ, V हाफ हो गया सपोज. ओके, यहाँ से डबल कर दिया डिस्टेंस यहाँ पर, तो E तो हो गया हाफ और ये हो जाएगा तुम्हारा, I mean potential will be, E will be 1/4. in fact E is dropping fast, तो 1/4 हो जाएगा ना. सपोज इट इज E is coming here, डिस्टेंस डबल करने में, ये this was R, this is 2R, but potential is not dropping that fast. ठीक है, तो both, when both graphs are put together, then we have to show the difference, है ना, कि
E को थोड़ा स्लो डिक्रीज करेंगे, I mean V को थोड़ा स्लो डिक्रीज करेंगे because it is inversely proportional to R. E should be dropping fast and both will be 0 at infinity. यहाँ पे infinite पे intersect करेंगे. So when we draw both the graphs, we have to be careful. This is NCERT book diagram. Sometimes you may be asked to draw together. Both are for point charges, and both electric field and potential is for point charge. Electric field for infinite sheet का कैसा ग्राफ आता है? Infinite sheet का electric field constant रहती है. It doesn't drop. अगर डायपोल का होगा तो फॉर, ये यहाँ पे लिखना जरूरी है ना, फॉर पॉइंट चार्ज है. डायपोल में 1/r³ आता है और फास्ट रेट से डिक्रीज होगा. Can we solve this? Okay, we have got the relation for point charge. Point charge का potential निकाल सकते हैं. Can we do this question? Yes. Find potential due to electron at distance 9 mm in vacuum. Convention यहाँ पे हम बार बार नहीं लिखेंगे. May be given. NCERT book में they might have given every time take potential at infinity 0, but we don't have to write again and again. Because just we have done the derivation and we will avoid writing that lengthy question, but it is valid everywhere. It means we can use this formula, put the value here, do it here. V is equal to 1/4πε0. उसकी वैल्यू कितनी होगी? Okay, always write the formula first. उसकी हाफ मार्क्स रहते हैं हमेशा. If you write formula correctly, you will get the half mark. 1/4πε0 is 9 into 10⁹. All three constant put together gives you 9 into 10⁹. वैक्यूम में ये वैल्यू 9 into 10⁹. Q कितना लिखेंगे? Can you tell me how much we should write Q? R is 9 millimeter. तो 9 into 10⁻³ स्क्वायर नहीं है यहाँ पर. फील्ड में स्क्वायर होता है, यहाँ पर नो स्क्वायरिंग. चार्ज कितना लिखें? हाउ मच चार्ज वी शुड पुट इट? बोलो, इज इट ओके? No sir, minus. No, sir. Minus 1.6. ऑलवेज माइनस है ना. ओके, ठीक है. इलेक्ट्रॉन का पोटेंशियल में स्केलर क्वांटिटीज में विद साइन वी पुट इट. फील्ड में हमने मॉडल. नाउ इट इज सिंपल. 9 goes minus 1.6 into 10⁻. कितना आएगा? -9 बचेगा. नहीं, ये भी 9 है, इधर भी 9 है. तो हाँ, तो इट विल बी -7 है. ठीक है. एंड यूनिट, व्हाट यूनिट वी शुड राइट? वोल्ट वी कैन राइट, बट डोंट कैंसिल बोथ साइड. ऐसा नहीं करना वी देख के जैसे कैंसिल कर दो. दिस इज सिंबल फॉर वोल्ट, फिजिकल क्वांटिटी, पोटेंशियल, and this is its unit, volt, in the honor of scientist Volta. ठीक है. और you can add joules per coulomb. और इलेक्ट्रॉन का देखो माइनस है, नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल माइनस होता है, एंड पॉजिटिव का पोटेंशियल प्लस आएगा. राइट. तो नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल इनफाइनाइट पे मैक्सिमम होगा. At infinity it will be 0, which is more than negative value. So negative charge का potential is maximum at infinity, which is 0, है ना, and less near to the charge. पॉजिटिव में क्या होगा? प्लस आएगा. It is more near to the charge.
इंफिनिटी पे ऑफ कोर्स 0, लेस एट इंफिनिटी। क्लियर? तो माइनस रहेगा नेगेटिव चार्जेस का पोटेंशियल विच इज लेस देन 0, देयरफॉर नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल इज मैक्सिमम एट इंफिनिटी। All right. Now suppose we have the two charges or three charges, then it will be, we have to find out the potential of each charge at particular point and add them simply without using any vector. अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे पिछले chapters में? We are adding with the vectors called superposition principle also, but here since they are scalar quantity, algebraically you can add them. Simple, plus है तो plus कर दो, minus plus minus है तो difference लेना पड़ेगा ना. But only thing you have to remember one thing, distance लेना पड़ेगा यहाँ से, ये वाला distance चाहिए. First charge का suppose R1 है, point से R2, point से distance चाहिए. We don't have to take the distance between the two charges. It's nothing doing. इसका कोई use नहीं है. दो charges के बीच का distance नहीं लेना है. You have to take R क्या है? R is the distance of point from the charge. यहाँ पे very clearly R is the distance of point P, point from the charge. Clear? It is not the distance between two charges. You get confused after that when I give you two charges, then you start taking the distance between two charges. No, point देखो कहाँ पर है और उसका फिर particular charge से distance निकाल लो, फिर फार्मूला लगा दो. K by R. K means 1/4 pi epsilon naught. That is 9 into 10 power 9. ठीक है, तो जैसे ये है, ये माइनस क्यू है इधर. ओके, डायपोल है ना. फाइंड पोटेंशियल ऑफ डायपोल at its midpoint if charges are plus and minus q and dipole length is 2a. So what will be the answer coming? So distance, point से distance कितनी होगी? a and a each. 2a नहीं लेना. Point is at distance a. Total distance is 2a. So point is at midpoint. So charges are at distance. So v is equal to v1 plus v2 है ना. तो v1 नेगेटिव का ले लो, माइनस के क्यू बाई ए, पॉजिटिव का प्लस हो जाएगा, प्लस के क्यू बाई ए. तो बोथ आर इक्वल एंड माइनस है, एक प्लस एक माइनस है, तो 0 हो गया. पोटेंशियल एट मिड पॉइंट इज 0 इन केस ऑफ डायपोल. क्लियर? तो 0 हो जाएगा. फील्ड विल बी नॉन जीरो. फील्ड किधर होगी? माइनस की इधर होगी, प्लस की भी अवे होगी. माइनस की टुवर्ड्स होती है, प्लस की अवे होती है. तो ऐसे फील्ड विल बी, ई विल बी नॉन जीरो. चलो ई भी निकाल देते. चलो हाउ मच विल बी ई? फाइंड पोटेंशियल एंड फील्ड. फील्ड निकालो. चलो, कैन यू फाइंड आउट फील्ड इन होमवर्क? चलो, okay, do it here. So many homeworks are there today, but some of them we are doing it. Field nikalo, you do it here. Tell me what is the answer. Do it fast, very fast. It should not take more than 1 minute. Getting? E due to minus q will be kq by distance. क्या लिखे बोलो? मॉड लिखना है ना यहाँ पे. देखो, ओके, फील्ड में मैंने क्या बोला था? यू डोंट पुट इट माइनस, डायरेक्शन सेपरेट. देखो, k माइनस q, डिस्टेंस कितनी होगी? a स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर. इट इज k q by a स्क्वायर
किधर होगा? लेफ्ट। नेगेटिव की फील्ड माइनस चार्ज है तो टूवर्ड्स होती, फील्ड लाइंस विल बी रेडियली टूवर्ड्स इट। एंड व्हाट अबाउट प्लस की फील्ड? तो के क्यू बाई ए स्क्वायर, ये भी किधर? ये भी लेफ्ट आएगी बिकॉज पॉजिटिव चार्ज इज लोकेटेड हियर। उसकी फील्ड लाइन ऐसे जाएंगी रेडियली आउटवर्ड एट एनी पॉइंट, तो ये भी लेफ्ट है। ऑलराइट, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, अभी दोनों सेम डायरेक्शन में है, therefore will be added up, therefore net field at center will be 2 times of kq by a square। किधर होगा? नेट दोनों ऐड हो गए। कंक्लूजन क्या है? फील्ड इज नॉन जीरो but potential is zero। Are you getting it? So is it possible, कभी क्वेश्चन अगर ऐसा आता है, is it possible to have zero potential and non-zero field? Yes, it is possible here। इसका उल्टा भी हो सकता है। अपोजिट कैसे होगा देखो। ओके, नोट डाउन, देन आई विल टेल यू other way also possible। Just note down, then I will tell you other part। Okay, all are present now। Today chemistry class is not there। Can I extend for half an hour? 8:25 तक कर सकते हैं। Anybody has a class, particularly those who are non-chemistry student, उनका कोई क्लास तो नहीं है अभी? No, sir. Okay, we can extend 20 minutes or half an hour। चलो, we'll see the situation। तो पोटेंशियल में we have to write my चार्जेस की माइनस वैल्यू पुट किया हमने यहाँ पर, एंड प्लस है तो प्लस, तो दोनों ऐड होके 0 हो गए। बट फील्ड में वी डोंट पुट माइनस, वी राइट मॉड एंड डायरेक्शन लिखते सेपरेट, डायरेक्शन दोनों की ऐड हो गई। एक ही डायरेक्शन में वेक्टर क्वांटिटी विल बी सिंपली एडेड अप एंड फील्ड इज नॉन जीरो, है ना, ये नॉन जीरो है बट पोटेंशियल इज 0। नाउ सपोज इफ आई मेक बोथ द चार्जेस पॉजिटिव, यहाँ पे भी पॉजिटिव कर देगी, ये भी पॉजिटिव कर देगी, तब क्या होगा? एक की फील्ड इधर आएगी, एक की फील्ड इधर आएगी, तो E विल बी 0 बट V विल बी एडेड अप, दोनों प्लस आ जाएंगे, फिर इट विल बी 2kq by a, पोटेंशियल विल बी नॉन जीरो। तो इसका अपोजिट भी ट्रू है। जनरली क्या होता है, फील्ड से पोटेंशियल डेवलप होता है। इट इज पोटेंशियल इज ड्यू टू फील्ड ओनली बिकॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है चार्ज के ऊपर, तो हमें वर्क करना पड़ता है। पोटेंशियल इज रिलेटेड टू वर्क, बट इट कैन बी एट सम पॉइंट ऐसा पॉसिबल है कि फील्ड 0 हो जाए, पोटेंशियल नॉन जीरो हो, एंड वाइस वर्सा at particular point, not always। देखो ना, yeah, if you move here then things will be different, है ना। at particular point it is possible, one is 0, other is non-zero। Okay, we'll see। Today we have many questions of this, तो सब सेम है, सेम फार्मूला, ओनली थिंग यू हैव टू रिमेम्बर आर पर करेक्टली। जैसे ये क्वेश्चन है, आर निकालना ही ट्रिक है इसमें, सभी क्वेश्चंस में, मेनी ऑफ क्वेश्चंस। देखो, दिस इज सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन क्वेश्चन। तो चार ये स्क्वायर है, देखो स्क्वायर ऑफ साइड √2 मीटर, इधर ये भी √2 मीटर, इट मींस इट इज स्क्वायर, है ना। चार्जेस आर केप्ट
on each corners. 1, 2 microcoulomb, 3 microcoulomb, minus 5 microcoulomb. So you have to find the potential at O. Distance कितनी होगी ये? Each corner से distance equal होगी. तो R will be equal in each cases. तो R निकाल लो. R will be half of the diagonal. है? So this is the root 2 square plus root 2 square. अंडर रूट के अंदर 4 हो गया. रूट से बाहर आएगा तो 2. तो दिस इज 2. हाफ ऑफ दैट विल बी 1. ठीक है. तो R इज 1 और सबके ऐड हो जाएंगे. सबके एल्जेब्राइकली ऐड हो जाएंगे. इसका प्लस आएगा, इसका प्लस आएगा, इसका प्लस, इसका माइनस. तो प्लस माइनस करके जो बचेगा वो आंसर हो जाएगा. ठीक है. तो वी कैन सी दिस के बाई आर कॉमन ले लिया बिकॉज आर इज कॉमन इन सभी में. V1 में भी R सेम रहेगा बिकॉज डिस्टेंस में भी डिस्कस सभी में R डिस्टेंस सेम है. और K भी सभी में रहेगा. K की वैल्यू यहाँ पर 9 × 10⁹. R इज 1. तो चार्जेस को हमने ब्रैकेट में लेके उनको वेक्टर मतलब प्लस माइनस कर लिया. 1 + 2 + 3 कितना हो गया 6 - 5. तो 1 माइक्रोकूलम बचा. माइक्रो मीन्स 10⁻⁻6. ये यहाँ पे आ जाएगा. और ये वैल्यू it is coming 9,000 volt. So this question can be repeated in board's examination. Could you get how did we get R? पाइथागोरस थ्योरम से डायगोनल निकाल लिया और उसको हाफ कर दिया ना. ये 2 आएगा. हाफ कर दिया तो R आ जाएगा. चार्ज को भी मैंने एक साथ ही लिख दिया प्लस माइनस करके. नो प्रॉब्लम. नोट कर लो इसको. दिस इज माइक्रो है ना, विच इज 10⁻⁻6 है. सभी में माइक्रो है. Done. All right, we'll see further. Can you do this question in normal? Checkpoint number 3 is a number. Red points are representing protons, and you have to find the potential at point P. In all 3 cases, greatest first लिखना है.
डन। All right, we'll see so far what we have seen in this chapter. Chapter number 2 में क्या देखा था? Just go back and have the brief revision because some of you missed the class yesterday. ना? तो देखते चलो, ज्यादा नहीं हुआ था. Just note down check point number 3, then we see. Okay, we started this chapter with the introduction that this chapter contains electrostatic potential and potential energy and capacitance. तीन टॉपिक्स हैं इसमें, पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी. तो पोटेंशियल एनर्जी एंड पोटेंशियल बोथ आर अगेन रिलेटेड टू ईच अदर, है ना. अगर पोटेंशियल, विल सी फर्दर, पोटेंशियल को अगर हम चार्ज से मल्टीप्लाई करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी बन जाता है. तो बोथ आर वेरी क्लोज टर्म्स and both are very useful in dealing with the motion of charges, particularly if multiple charges are interacting and changing their position. So we know that distance उनका change होगा तो force change होता है, acceleration change हो जाता है. So very difficult to use the kinematic equation or equation of motion, but very easy to use the conservation of mechanical energy because conservative forces हैं. तो मैकेनिकल एनर्जी में फिर पोटेंशियल एनर्जी आती है, काइनेटिक एनर्जी भी आती है. तो वी कैन वेरी इजीली गेट द काइनेटिक एनर्जी एंड हेंस द वेलोसिटीज एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट्स. जब उनकी पोजीशन चेंज हुई ड्यू टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, तो वेलोसिटी निकालना बहुत आसान हो जाता है और पैरामीटर्स भी आसान हो जाते हैं, एनर्जी निकालना भी. बिकॉज वन एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू अदर, पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू काइनेटिक एनर्जी एंड वाइस वर्सा, which we call it law of conservation of mechanical energy. Mechanical energy is nothing but Ke plus P. This concept of potential is therefore very, very important in dealing with the motion of charges and masses also. Masses भी conservative force होते हैं, gravitational force भी conservative force है. वहां भी काफी यूज है एनर्जी कंजर्वेशन, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन का, यहाँ पर भी यूज रहेगा. तो हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस निकाला था, दो इलेक्ट्रिक फील्ड में दो पॉइंट के बीच में. कैसे निकाला था? वर्क डन इन शिफ्टिंग 1 कूलम चार्ज. 1 कूलम चार्ज को ए से बी तक लेके आओ, कितना वर्क करना पड़ेगा? तो दैट विल बी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, वीबी माइनस वीए. जिस इन फाइनल पॉइंट पहले आता है माइनस इनिशियल पॉइंट. वर्क डन बाय एक्सटर्नल सोर्स. एक्सटर्नल सोर्स मींस वी आर द एक्सटर्नल सोर्स, वी आर शिफ्टिंग इट. इलेक्ट्रिक फील्ड इज द इंटरनल सोर्स, उसका नहीं चाहिए. हम जो खुद वर्क करते चार्ज को उठा के दूसरे पॉइंट पे लेके आते हैं. अगर 1 कूलम चार्ज नहीं है, Q0 कूलम है, तो डिवाइड करना पड़ेगा. और इट इज द स्केलर क्वांटिटी. ऐसा यूनिट इज जूल, वर्क का जूल है और चार्ज का कूलम है. and other direct unit is also there, volt. So generally we use this, and it can be positive or negative depending upon type of charge and direction in which move, किस तरफ हम move कर रहे हैं, and high electric field की direction में जा रहा है या opposite जा रहा है. So it depends on other factor also, direction of motion also and nature of charge also. यहाँ पर भी तो आ सकता है ना, ये अगर ये पॉजिटिव चार्ज है और ये अगर माइनस हो गया तो इफ यू गो टुवर्ड द लोअर पोटेंशियल साइड तभी वर्क डन नेगेटिव आ जाएगा, है ना. और पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव आ सकता है डिपेंडिंग अपॉन चार्ज, नेचर ऑफ चार्ज, है ना, वर्क डन कैसा हुआ. तो इट डिपेंड्स अपॉन द वेरियस पॉइंट्स, नॉट ओनली ऑन द चार्ज. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या होता है, एक पॉइंट जो है, पॉइंट ए गोज टू इन्फिनिटी. अगर ये इसको इनफाइनाइट पे पता दिया, फिर पॉइंट बी पर हम चार्ज को लेके आते हैं 1 कूलम चार्ज को, तो जितना वर्क करना पड़ेगा
So that will be the potential at that point in the electric field. So first point will be shifted to infinite. Then we can get, वहां पे तो पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, तो जो भी पोटेंशियल अभी वी बी होगा उसको वी लिख देंगे हम. तो पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या है? वर्क डन in shifting the 1 coulomb charge from infinity to that particular point will give you the potential at that point in the field. And of course, unit and all remain same. And then हमने ये न्यूमेरिकल किया था इसी डेफिनेशन पर. चार्ज माइनस है तो माइनस लेंगे, ठीक है. और फिर हमने ये भी देखा था चार्ज को अगर हम स्लोली या कांस्टेंट स्पीड से या विदाउट एक्सेलरेशन शिफ्ट करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होती है, और वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है. ऑल फोर्सेस यहाँ कौन कौन ऐड करेंगे? इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस एक्सटर्नल सोर्स विच कैन बी यू और वी और एनीबडी एल्स जो कि चार्ज को लेके आ रहा है. तो राइट साइड में तो जीरो है, तो इसका मतलब एक इनमें से एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा. वन ऑफ देम हैज टू बी पॉजिटिव. अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होगा. इलेक्ट्रिक फील्ड ने अगर पॉजिटिव वर्क किया तो इसने नेगेटिव किया, देन ओनली एडेड टुगेदर विल बी जीरो. तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी जीरो क्यों है? बिकॉज कांस्टेंट वेलोसिटी से या स्लोली ले रहे हैं. वी शुड बी वेरी वेरी स्मॉल, नेग्लिजिबल, और यू आर ब्रिंगिंग इट विद द कांस्टेंट वेलोसिटी, नो एक्सेलरेशन इन्वॉल्व. जनरली these are the conditions automatically taken into consideration without mentioning or with mentions. ठीक है. तो दोनों इक्वल एंड अपोजिट होते हैं. ये पॉइंट हमने यूज किया डेरिवेशन में. पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज इज गिवन बाय दिस फार्मूला, जिसका डेरिवेशन हमने नीचे किया. तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क निकाल लिया. वो इजी था बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क क्यों निकाला? यहाँ पर ये वाली जो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉजिटिव चार्ज की, पॉजिटिव को इधर पुश करेगी, और इधर ही dx भी है. x जो है इसी डायरेक्शन में बढ़ रहा है, तो dx भी पॉजिटिव होगा इसी डायरेक्शन में. फील्ड भी पॉजिटिव, फोर्स भी पॉजिटिव है, तो वर्क डन विल बी, दोनों के बीच में एंगल जीरो हो जाएगा, फिर दोनों एक ही डायरेक्शन में. तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी पॉजिटिव ओनली. एंड क्या किया? इनफाइनाइट से r तक निकाल लिया, तो हमें ये मिल गया. डेरिवेशन के बाद यहाँ पर हमने ये एक्स स्क्वायर जो था ना इसको ऊपर शिफ्ट कर देंगे, ऐसे कांस्टेंट को बाहर निकाल लेंगे, तो इसका डेरिवेशन ये, इसका इंटीग्रेशन ये आएगा. एक पावर बढ़ जाएगी, -2 + 1 विल मेक इट -1 ईयर. नीचे भी वही आता है, तो माइनस आ गया. इलेक्ट्रिक फील्ड ने वर्क डन माइनस किया, इसका मतलब एक्सटर्नल सोर्स ने प्लस किया होगा. यहाँ पे हमने डिराइव किया ये रिलेशन. वर्क डन by electric field is negative of work done by external source, or work done by external source is equal to minus of work done by electric field. तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का माइनस था, यहाँ भी माइनस है, तो इट विल बिकम प्लस. दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो ये माइनस मिला तो दूसरा प्लस होगा. कहाँ गया? हाँ, ये माइनस माइनस विल मेक इट प्लस. यहाँ पे माइनस था, एक प्लस हो गया. बस यही डेरी. अच्छा, उसके बाद वर्क डन मिल गया इनफाइनाइट से पर्टिकुलर पॉइंट तक लाने में, आर डिस्टेंस तक लाने में. यहाँ पे तो लिमिट हमने आर ली है, तो वो पुट कर दिया. नीचे डेफिनेशन में पर यूनिट चार्ज आता है. यहाँ पे कौन सा चार्ज है? क्यू नॉट है. क्यू नॉट विल गो. तो ये डेरिवेशन हो गया. इसी डेरिवेशन के क्वेश्चंस वी आर गोइंग टू डू टुडे. सो मेनी क्वेश्चंस एंड फर्दर डेरिवेशन बेस्ड ऑन दिस फार्मूला ओनली. आज पूरा टॉपिक इसी फार्मूले पे चल रहा है. और माइनस चार्ज माइनस है तो माइनस, यहाँ भी माइनस पुट करेंगे. देन वी saw this graph, then we did this numerical. मल्टीपल चार्जेस के लिए सिंपली एड अप हो जाएंगे. ओनली थिंग यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पर्टिकुलर पॉइंट फ्रॉम द ईच चार्ज करेक्टली. ठीक, तो हमने करेक्ट डिस्टेंस आर निकालने के बाद एल्जेब्राइकली ऐड कर लिए. प्लस है तो प्लस हो गए, माइनस है तो माइनस हो जाएंगे यहाँ पे चार्जेस. या फिर पोटेंशियल, या अलग अलग पोटेंशियल निकाल के ऐड प्लस माइनस कर सकते थे, बट उसमें टाइम कंज्यूमिंग है, इसलिए मैंने कॉमन टर्म्स बाहर निकाल के बाद में वैल्यू पुट कर दी. ऑलराइट, तो दिस इज डन.
Now this is homework. This is your textbook question. Important question है ये. क्या दिया है? Regular hexagon of side 10 centimeter has the charge 5 microcoulomb at each of its vertices. सभी पे 5 microcoulomb, 5 microcoulomb. ठीक. All corners. Calculate the potential at the center of the hexagon. यहाँ पे निकालना है. तो you see hexagon में क्या होता है? जितनी साइड होती है उतना ही डिस्टेंस आता है सेंटर से ईच कॉर्नर का. इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाते हैं इसमें. तो तुम्हें यू डोंट हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस. यहाँ पर यू शुड नो दिस. हेक्सागोन में जो जितनी लेंथ ऑफ साइड है उतना ही सेंटर से डिस्टेंस है. इसका मतलब क्या हो जाएगा? आर विल बी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, दैट विल बी 0.1 मीटर. और चार्जेस भी आइडेंटिकल है तो 6 टाइम्स कर लेंगे. एक का पोटेंशियल निकाल के 6 टाइम्स कर लेंगे. देखो कितना आ रहा है. डू इट ऑन द रफ नोटबुक एंड टेल मी द आंसर फास्ट. और फेयर पे भी कर सकते हैं. देखो कितना आंसर आ रहा है. क्विक प्रैक्टिस इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी इन द क्लास. जितनी प्रैक्टिस करेंगे सिली मिस्टेक्स उतनी कम हो जाएंगी बाद में. इनिशियली देयर मे बी मिस्टेक्स but later on mistakes will be reduced and speed will go up. Okay, let's see the answer now. Can you see it? 6 times of the potential due to one charge. Identical situation है कि Q by R 9 into 10⁻9 हो गया. Q जो है माइक्रो में है 10⁻6 हो जाएगा. Distance 0.1 from each corner. It is coming 2.7 into 10⁻6 volt. ठीक है. तो this is important question. Can be asked with the changed value. All right. This was the question number 2 of the exercise, and question number 1 of the exercise is also very important. That you have to do your own. All right, let me see this question. देखो, 2 charges हैं, 5 and -3 are located 16 centimeter apart. At what points? Points दिया देखो. It will be certainly more than 1 point. On the line joining the 2 charges, is the electric potential 0? Take the potential at infinity to 0. ये convention I told you, NCERT book में they will always mention ये जो फार्मूले हैं they are based on the potential at infinity is 0. That is complete proper wording of the question. कौन सा इसका मतलब infinity पे 0 है तो we are going to use the same formula K Q by R. ठीक है.
नाउ पॉइंट्स लिखा है, हाउ मेनी पॉइंट्स आर पॉसिबल? डू यू नो हाउ मेनी पॉइंट्स आर पॉसिबल फॉर जीरो पोटेंशियल? इलेक्ट्रिक फील्ड में तो 2 पॉइंट थे ना, एक तो आइदर इन बिटवीन और आउटसाइड डिपेंडिंग अपॉन द चार्जेस, और दूसरा इन्फिनिटी पर था। इसमें ऑन द लाइन ज्वाइनिंग एटलीस्ट 2 पॉइंट्स विल बी देयर। देखो, लेट मी, ओके, ये 5 है, 10 to the power -8, और बी पर -3 है। इसमें देखो एक वन पॉइंट यू शुड नो, one has to be plus, other has to be minus, because we are adding simply, algebraically add कर रहे हैं, डायरेक्शन तो होती नहीं इसमें, तो इसलिए one should be plus, other should be minus, then only zero potential points will be obtained. दोनों प्लस है तो चांस नहीं है, जीरो पोटेंशियल विल बी ओनली एट इन्फिनिटी। अगर दोनों माइनस है देन आल्सो नियर बाई तो पॉसिबल ही नहीं है जीरो पोटेंशियल। Therefore, one should be positive, other should be negative. Hence, ग्रेविटेशन के चैप्टर में जीरो पोटेंशियल का पॉइंट नहीं पढ़ा होगा तुम लोगों ने, बिकॉज बोथ मासेस आर आइडेंटिकल, है ना। ग्रेविटेशन के पोटेंशियल में ऑफ कोर्स ग्रेविटेशन के चैप्टर में पोटेंशियल नहीं है एज फार एज एनसीईआरटी बुक इज कंसर्न, बट नाउ यू कैन राइट देयर, ग्रेविटेशन के चैप्टर में पोटेंशियल लिख सकते हैं। सपोज मास इज हियर एंड पॉइंट पी इज हियर एट डिस्टेंस आर, कितना होगा ग्रेविटेशन का पोटेंशियल? जी एम बाई आर, और उसमें माइनस आता है हमेशा ग्रेविटेशन के पोटेंशियल में, बिकॉज उसमें ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्सेस आर इन्वॉल्व, तो पोटेंशियल में माइनस आ जाता है अपने आप डेरिवेशन जब करते हैं, बट एनसीईआरटी बुक इट इज नॉट गिवन, तो अभी सॉल्व कर सकते हैं। तो माइनस तो रहेगा, जी की वैल्यू जो है कांस्टेंट 6.67 इंटू 10⁻11, मास की वैल्यू पुट कर दो, आर की वैल्यू पुट कर दो, तो बट उसमें क्या होगा, दोनों मास से दोनों मास के नेगेटिव आ जाएंगे, कहीं भी कोई भी पॉइंट लेंगे दोनों मास के नेगेटिव होंगे, तो माइनस माइनस विल बी एडेड अप ऑलवेज। तो इसलिए पोटेंशियल जो है, पोटेंशियल में ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। ग्रेविटेशन ग्रेविटेशन के चैप्टर में ये पोटेंशियल, ये ऐसा नहीं बन सकता जीरो पोटेंशियल का पॉइंट कभी भी, बट जीरो फील्ड का पॉइंट बन सकता है, जैसा हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में किया था। यहाँ पे 4 क्यू लिया था, यहाँ पे क्यू लिया था, एक क्वेश्चन था, इट कैन बी अदर चार्जेस आल्सो, बट हमने यही क्वेश्चन किया था 4:1 का रेशो। तो डिस्टेंस इधर से r/3 आया था, इधर से 2r/3 आया था, और छोटे चार्ज के पास रहती फील्ड r/3। तो मासेस के लिए भी हो सकता है 4m m, तो उसमें भी वही आंसर आएगा फिर, 2r/3 फ्रॉम 4m, r/3 from m. So that question was asked in fact in JEE or NEET, because once we know the electrostatics के formula, we are supposed to know the formula of gravitation, also gravitational field and gravitational potential. Okay, let me write here. Those who are going for competitive examination, उनके लिए V का फार्मूला मैं लिख दूं, और इलेक्ट्रिक फील्ड का देखो, पोटेंशियल के लिए it is not there in NCERT book, but then also it was asked either in JEE or in NEET, दोनों में से एक जगह। तो ग्रेविटेशन का पोटेंशियल का फार्मूला आएगा, सपोज ये मास है m, और पॉइंट P पर हमें ग्रेविटेशन पोटेंशियल निकालना है। ग्रेविटेशन पोटेंशियल का क्वेश्चन था, we have discussed in the class, there was no theory, but there was one question, we did it in the class, solved example। तो -g m/r, ठीक है। तो एक तो यहाँ पे माइनस है, और कांस्टेंट भी चेंज हो जाएगा, मास भी, यूनिट भी इसका चेंज हो जाएगा। यूनिट क्या होगा, वोल्ट नहीं लिख सकते, ग्रेविटेशन पोटेंशियल का यूनिट लिख सकते क्या वोल्ट? नो, वो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल के लिए होता है। तो क्या यूनिट होगा, डेफिनेशन यही रहेगी उसकी, वर्क डन पर यूनिट, जैसे वर्क डन पर यूनिट चार्ज था ना, कहाँ गया ये वर्क डन पर यूनिट चार्ज था,
तो वहां पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल विल बी वर्क डन पर यूनिट मास। तो यूनिट क्या आएगा? जूल्स पर केजी। ठीक है, तो यहां से हम लिखेंगे जूल्स पर केजी। ठीक है, क्योंकि उसकी डेफिनेशन, ग्रेविटेशन पोटेंशियल की डेफिनेशन आएगी V विल बी वर्क डन पर यूनिट मास। यहाँ से ये फार्मूला है। पहले तो डेफिनेशन लिखी जाती है पर्टिकुलर क्वांटिटी, फिर पर्टिकुलर केसेस के लिए निकाले जाते हैं। पॉइंट चार्ज का कुछ और होगा, डायपोल का कुछ और पोटेंशियल होगा। ऑल विल कम फ्रॉम दिस फार्मूला, फ्रॉम दिस बेसिक डेफिनेशन। यूनिट क्या होगा? जूल्स पर केजी। और फील्ड का भी लिख सकते हैं। लेट मी राइट समवेयर फॉर द फील्ड आल्सो। फील्ड का, ओके, सपोज ये पॉइंट चार्ज क्यू है एट डिस्टेंस p, एट डिस्टेंस r एट पॉइंट p। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? k q बाई r स्क्वायर। तो मास के लिए क्या होगा? अच्छा, इसमें प्लस के लिए आउटवर्ड होगी, लेकिन मास के लिए हमेशा मास जो है नेगेटिव चार्ज के इक्विवेलेंट काम करता है। तो ग्रेविटेशन फील्ड विल बी इक्वल टू k, कितना है वहां पर? g होता है ना, g q की जगह m r स्क्वायर। डायरेक्शन उसकी हमेशा मास की तरफ होती है। एक ही सिचुएशन पॉसिबल होती है, ग्रेविटेशन ग्रेविटेशन ग्रेविटेशनल फील्ड। तो व्हाट दे अज्यूम, particularly competitive examination, once you know for electric field, you know for gravitational also. तो ग्रेविटेशन फील्ड में क्या होगा? फार्मूला ऑलमोस्ट सेम आएगा और डायरेक्शन हमेशा मास की तरफ होगी। जैसे अर्थ की ग्रेविटेशन फील्ड निकालनी है सरफेस पर या हाइट पर, तो अर्थ की अगर सरफेस पे निकालनी है तो अर्थ का मास ले लो ये, और ये कैपिटल आर ले लो, है ना। सपोज ये अर्थ है, तो उसके सरफेस पे फील्ड निकालनी है तो अंदर की तरफ होगी। इट विल बी टुवर्ड्स सेंटर, क्योंकि सेंटर में उसका मास हम अज्यूम करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड। तो फील्ड विल बी ऑलवेज टुवर्ड द सेंटर ऑफ द मास, एंड फार्मूला तो सिमिलर है। एंड इनफैक्ट अर्थ की जो फील्ड होती है वो जी के बराबर होती है, इट इज इक्वल टू जी। यहाँ पे अगर बोला जाए सरफेस पे फील्ड कितनी है, तो जी कितना है? 9.8, तो फील्ड भी 9.8 डाउनवर्ड, जी भी 9.8 डाउनवर्ड। तो अर्थ की जो फील्ड होती है वो जी के बराबर होती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एनीवेयर। हाइट पे जाएंगे तो कम हो जाती है, फील्ड भी कम हो जाएगी, बिकॉज दिस फार्मूला इनफैक्ट इज नथिंग बट है जी इक्वल टू एम जी होता है ये फार्मूला। तो एम एम कैंसिल हो जाता है, नहीं ऐसा होता है। हाँ, जी क्या होता है? जी एम बाई आर स्क्वायर आता है, कैंसिल नहीं होगा, सॉरी। तो यहाँ पे कैपिटल एम हो जाएगा। अर्थ की सरफेस पे याद है जी। तो इन केस ऑफ अर्थ आर पॉइंट मास, इन केस ऑफ अर्थ, इनफैक्ट इन केस ऑफ अर्थ जितना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है उतनी फील्ड होती है, डायरेक्शन भी सेम होती है। ठीक है, तो दिस पॉइंट्स हैव एडेड फॉर दोज particularly going for competitive examinations. Anything you want to clarify here? Quick clarification, कुछ point miss किया हो तुमने? Are you there? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So what I told, हाँ, मैंने क्या बोला कि देखो फील्ड एंड पोटेंशियल, ग्रेविटेशन फील्ड एंड ग्रेविटेशन पोटेंशियल के फार्मूले सिमिलर ही बनेंगे। ओनली थिंग Q will be replaced by the charge, I mean Q will be replaced by the mass, कांस्टेंट भी चेंज हो जाता है, बट सिमिलर लुकिंग फार्मूले होते हैं ना। देखो फील्ड का देखो सिमिलर लुकिंग फार्मूला है। पॉइंट चार्ज की बात करें,
या फिर राउंड ऑब्जेक्ट की बात करें, राउंड पॉइंट चार्ज एंड स्फेरिकल बॉडीज सेम रिजल्ट देते हैं। यहाँ भी हमने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द स्फेरिकल बॉडी देखा था, आउटसाइड एंड ऑन द सरफेस सेम एज दैट ऑफ द पॉइंट चार्ज पोजीशनड एट इट्स सेंटर। पॉइंट चार्ज जैसा ही रहेगा, तो अर्थ का भी सेम ही आता है ना, पॉइंट चार्ज जैसा रहेगा। ओनली थिंग क्यू की जगह एम और के की जगह जी, आर स्क्वायर एज इट इज। एंड इसमें हमेशा अट्रैक्टिव फील्ड रहती है। फील्ड मतलब मास की तरफ डायरेक्शन रहता है। इसमें पॉजिटिव चार्ज के लिए आउटवर्ड रहेगा और नेगेटिव चार्ज होगा तो इनवर्ड रहेगा। मतलब मास जो है नेगेटिव चार्ज जैसा बिहेव कर रहा है एज फार एज डायरेक्शंस ऑफ फील्ड्स आर कंसर्न। वैसे भी अट्रैक्टिव नेचर होता है ना, तो माइनस साइन का थोड़ा बहुत मीनिंग हम ये निकालते हैं, माइनस साइन अगर कहीं पे आता है तो बाउंड और अट्रैक्टिव, लाइक दिस मीनिंग कम्स मोस्ट ऑफ द टाइम। और पोटेंशियल का हमने डिफरेंस बता ही दिया यहाँ पे। पोटेंशियल की डेफिनेशन वर्क डन पर यूनिट मास हो जाएगी, उससे पॉइंट चार्ज का जो फार्मूला होगा पॉइंट मास का पॉइंट चार्ज जैसा आएगा, लेकिन माइनस रहेगा। ऊपर तो वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए वेक्टर क्वांटिटी में हम माइनस नहीं लिखते, डायरेक्शन सेपरेट लिखते हैं। ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है तो डेरिवेशन से यहाँ पे माइनस आ जाता है जब हम इंटीग्रेशन से डेरिवेशन करते ना। ऐसा क्यों ऐसा? बिकॉज हम इसमें क्या होता है, पॉजिटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड है और टेस्ट चार्ज भी पॉजिटिव है, उसको आउटवर्ड फोर्स कर रहा है, और dx भी आउटवर्ड है, इंक्रीज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज पॉजिटिव आउटवर्ड। बट ग्रेविटेशन में क्या होगा, ग्रेविटेशन की फील्ड इधर हो, ग्रेविटेशन का फोर्स इधर होगा, dx इधर है, तो 180 डिग्री एंगल आ जाता है यहाँ पर, ये वाला। तो जब डेरिवेशन करते हैं तो यहाँ प्लस आ जाता है, फिर जब हम ये लगाते हैं यहाँ पर तो यहाँ पे माइनस आ जाता है, इसलिए ये माइनस आता है। तो डेरिवेशन ऑफ कोर्स नहीं है एनसीईआरटी बुक में, डायरेक्ट फार्मूला दिया हुआ है, वो भी एक न्यूमेरिकल में, थियरी कुछ भी नहीं डिस्कस की है। पोटेंशियल वी डिड इट इन द क्लास दैट क्वेश्चन, पहले मैंने थियरी बताई थी ये, उसके बाद ठीक है। तो यहाँ पे माइनस परमानेंटली है, नो वेट कैन बी पॉजिटिव बिकॉज उसमें कोई ऐसा प्लस माइनस चार्ज नहीं होता, केवल मास होता है, उसका नेचर भी नेगेटिव चार्ज जैसा है, तो इसलिए माइनस आ जाता है। डेफिनेशन रिमेन्स सेम, वर्क डन पर यूनिट मास, यहाँ पे वर्क डन पर यूनिट चार्ज। यूनिट will also change, joules per kg लिखेंगे, because this comes from this basic definition of potential. ठीक है, तो कमिंग बैक टू दिस क्वेश्चन अगेन, ये क्वेश्चन में डिस्कस कर रहा था। नाउ हाउ मेनी पॉइंट्स, देखो इसमें आई विल टेल यू, एक्चुअल में तो बहुत सारे पॉइंट होते हैं, बट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग एक पॉइंट तो अंदर मिलेगा यहाँ कहीं पे, नियर टू द स्मॉलर चार्ज इन मैग्नीट्यूड, जो मैग्नीट्यूड में छोटा होगा उसके आसपास मिलेगा, बिकॉज क्यू बाई दैट के क्यू बाई आर रेशियो डिसाइड करता है। अगर क्यू बड़ा है तो आर भी बड़ा होना चाहिए, तभी तो v1 माइनस v2 विल बी इक्वल टू 0। मतलब दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल है, डायरेक्शन आई मीन दोनों जो है कैंसिल कब होंगे, जब दोनों एक प्लस हो और एक माइनस हो, दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल हो। ठीक है, एक तो यहाँ कहीं पे मिलेगा, ऐसे ले लेंगे डिस्टेंस x, तो टोटल डिस्टेंस कितनी दी हुई है 16, तो ये 16 माइनस x हो जाएगी। मीटर में नहीं भी कन्वर्ट किया तो सेंटीमीटर में आंसर आ जाएगा, डजेंट मैटर, दोनों तरफ 10⁻⁻² कैंसिल हो जाएगा अगर मीटर में कन्वर्ट कर लिया। तो यू कैन डू इट विदाउट कन्वर्टिंग, विद कन्वर्टिंग, अपने घर में एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। कन्वर्ट किया तो आंसर सही आएगा, बिना कन्वर्ट किए हुए क्या चेंजेस होंगे आंसर। ठीक है, तो दैट यू कंप्लीटेड। एक पॉइंट यहाँ होगा, दूसरा पॉइंट यहाँ कहीं पर होगा आउटसाइड। ठीक है, और तीसरा पॉइंट ऑफकोर्स इनफाइनाइट पे पोटेंशियल 0 होता ही है, तो वो जनरली इनफाइनाइट वाला पॉइंट हम नहीं लिखेंगे, बट लॉजिकली बोला जाए हाउ मेनी पॉइंट, इनफाइनाइट वाला भी काउंट होगा। बट इनफैक्ट इसमें तो होता क्या है, एक सर्कल बन जाता है, सो मेनी पॉइंट्स आर देयर। ओके ठीक है, तो कल बताएंगे वो पॉइंट, फिलहाल तो 2 पॉइंट होंगे, एक अंदर एक बाहर, वी आर द 2 पॉइंट्स, तो दोनों निकालने पड़ेंगे।
यू हैव टू फाइंड, इसीलिए पॉइंट्स लिखा है. somebody may say sir can we take this side, पॉइंट ले सकते क्या? यू कैन टेक इट, बट जब तुम सॉल्व करोगे इसको x लोगे, जब सॉल्व करोगे x नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव समथिंग, इसका मतलब इस तरफ है कई पॉइंट. इफ समथिंग कमिंग यू आर टेकिंग पॉजिटिव दिस साइड, अब सॉल्व करने में नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब अपोजिट डायरेक्शन में होगा पॉइंट. तो somebody में से नहीं मैं तो इधर ही लूंगा, कोई बात नहीं. तो x की वैल्यू सॉल्व करने में नेगेटिव आ जाएगी, मैग्नीट्यूड वही आएगा, तो यहाँ से अपोजिट में होगा वो पॉइंट जितना तुम्हारा आ रहा है. तो बेटर यू टेक दिस साइड ओनली, यू नो दैट कि यहाँ कहीं पे 0 होने वाला है और एक बाहर 0 होने वाला है. डोंट टेक दिस साइड, बट यू कैन डू द एक्सपेरिमेंट. इधर लेने से क्या आ रहा है, पॉइंट x लेने से उसकी वैल्यू माइनस आ जाएगी, इसका मतलब अपोजिट यहाँ कहीं पर और एक इधर भी आएगा. एक और पॉइंट अभी मैं नहीं बता रहा हूँ, आई विल टेल यू टुमारो, रिमाइंड मी. आर अदर पॉइंट्स आर आल्सो पॉसिबल इन द विसिनिटी, इनफाइनाइट को छोड़ के कहीं और भी 0 हो सकता है? आंसर इज यस. तो आई विल टेल यू कहां पर और 0 होगा टुमारो. अदर देन ऑन द लाइन ज्वाइनिंग, अदर पॉइंट्स आर आल्सो देयर जहां पे 0 हो सकता है. दैट इज नॉट मेंशन इन द बुक, देयरफॉर वी विल फाइंड आउट ओनली 2. दे आर टोल्ड अस कि लाइन ज्वाइनिंग पे निकालो, तो वहीं पे निकालना हमें. वी डोंट हैव टू गो अदर पॉइंट्स. All right, so this question is also important for boards and competitive examination. तो ये क्वेश्चन सॉल्व एग्जांपल है, ये फर्स्ट पार्ट ओनली आई एम टॉकिंग अबाउट. तो यहाँ पे बोला है कि ये पॉइंट P है और ये Q है. तो गिव द साइन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस. तो यहाँ पे प्लस है, देखो प्लस है, फार्मूला तो KQ/R होता है. तो पॉइंट P पर पोटेंशियल हायर होगा, Q पर लोअर होगा, तो VP minus VQ will be greater than 0, that will be positive. नेगेटिव में इसका उल्टा हो जाएगा, माइनस में व्हाट आई टोल्ड यू, नियर टू द चार्ज पोटेंशियल इज मोर नेगेटिव, लेस इनफाइनाइट पे 0 है विच इज मैक्सिमम. जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं पोटेंशियल बढ़ रहा है, तो इसका उल्टा आंसर आएगा. तो क्या निकलना है, VA minus VB will be negative, or in other words VB minus VA पूछा है ना, VB minus VA, it will be positive. B दूर है, और जितना दूर जा रहे हैं इनफाइनाइट पे 0 है, that is greater than negative. तो B is at higher potential, A is at lower potential because here minus है. तो VB minus VA will be positive. वैसे भी कॉमन सेंस से भी कर सकते हो. देखो पॉइंट A KQ/R वाले फार्मूले से सपोज A पर पोटेंशियल फॉर एग्जांपल वैल्यूज तो दी नहीं है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे सपोज -10 आ गया, तो दूर जाएंगे तो -8 कुछ आएगा, तो है ना, थोड़ा और कम मैग्नीट्यूड में कम आएगा बिकॉज R इज इंक्रीजिंग. तो -8 -10, तो 2 वोल्ट आ रहा है. तो -8 इज ग्रेटर देन -10, है ना. माइनस अगर लग जाता है तो थिंग्स आर इंटरप्रेटेड डिफरेंटली, है ना. तो यहाँ पर दोनों पॉजिटिव आएंगे फिर, VP minus VQ is positive and ये भी पॉजिटिव. Because B being away will have more potential because minus Q minus charge है यहाँ पर. ठीक है. ठीक है, तो this first part can be asked in the short questions, 1 mark में, 1 mark question. Other parts potential energy के we can do it. What about this question? देखो क्वेश्चन नंबर 13 क्यूब है अभी,
एंड क्यूब के सभी कॉर्नर्स पे चार्ज क्यू है. डिटरमाइन द पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज एट द सेंटर ऑफ द क्यूब. तो सेंटर ऑफ क्यूब पर पोटेंशियल कैसे निकालेंगे? अभी क्यूब के सेंटर का डिस्टेंस ईच कॉर्नर से निकालना पड़ेगा. क्यूबिकल बॉडी का सपोज रूम है, यू आर इन द रूम विच इज क्यूबिकल, ईच कॉर्नर से रूम का सेंटर कितनी डिस्टेंस पर होगा? रूट ऑफ साइड कितनी दी है? बी. 1/2 ऑफ द रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना. बॉडी डायगोनल जो होगा b√3 होगा, उसका आधा. सेंटर से डिस्टेंस कितनी आएगी? b√3/2. ये होमवर्क में है. ऑलराइट, तो आई टोल्ड यू द डिस्टेंस है ना. एंड फील्ड कितनी होगी? कैन समबडी टेल मी द फील्ड एट सेंटर ऑफ द क्यूबिकल, center of the cube? Field of course will be 0. सभी चार्जेस जो है आइडेंटिकल है, सबकी फील्ड अपोजिट जाएगी. कॉर्नर्स पे जो चार्जेस हैं फील्ड पे अपनी अपनी फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस करेंगे. दूसरे कॉर्नर की तरफ दे विल प्रोवाइड द कैंसलिंग इफेक्ट. सेंटर की बात हो रही है. सेंटर पे ऑल द 4 एरोज will be in opposite direction. Net field will be 0 at center. Symmetrical situation है, distances same है, charges same है, और field में direction होती है. They will oppose, each field will be opposing the other charge field. तो 0 आ जाएगी. So you don't have to do anything extra there. But potential will be non-zero. Calculate कर लो. This is the homework problem. 13th problem. All right. और ये भी क्वेश्चन देखो, दिस क्वेश्चन कैन बी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. अभी जो हमने बिगनिंग में किया था वैसा ही क्वेश्चन है ये. ओनली थिंग चार्जेस आर डिफरेंट है. 2 tiny spheres carrying the charges 1.5 and 2.5 microcoulomb are located 30 centimeter apart. Find the potential and field at the midpoint of the line joining. Midpoint का distance हो जाएगा 15.15 मीटर. तो पोटेंशियल ऐड कर लो, KQ1/R plus KQ2/R. and field अपोजिट आएंगी बट अनइक्वल चार्जेस है, तो डिफरेंस ऑफ 2 अपोजिट वेक्टर्स आ जाएंगे. इसकी फील्ड बड़ी होगी तो इसमें से ये माइनस हो जाएगा. ठीक है. एट द पॉइंट, सेकेंड पार्ट देखो, एट द पॉइंट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम दिस मिड पॉइंट इन द प्लेन नॉर्मल टू द लाइन एंड पासिंग थ्रू मिड पॉइंट. इसका क्या करेंगे? ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट हो जाएगा. वेक्टर से ऐड करना है. देखो ये वेक्टर से ऐड करना है थोड़ा सा. यू हैव टू हैव द पेशेंस. 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिड पॉइंट, सपोज ये 10 सेंटीमीटर यहाँ पर है, तो इधर से ये सेकेंड पार्ट आई एम टॉकिंग अबाउट. फर्स्ट पार्ट मैंने बता दिया. तो पोटेंशियल के लिए निकालना पड़ेगा. ये 10 है, ये 15 है, तो रूट से पाइथागोरस थ्योरम से ये डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी भी, और सेम ये भी हो जाएगी. R डैश कर लो. पोटेंशियल विल बी, इसको R डैश कर लो. पोटेंशियल विल बी V1 प्लस V2. चार्जेस डिफरेंट है तो अलग लगाइए. KQ1/R डैश प्लस KQ2/R डैश. पोटेंशियल तो आ जाएगा, बट फील्ड के लिए क्या करेंगे?
फील्ड में थोड़ा सा प्रॉब्लम जाएंगी। देखो फील्ड के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो 1.5 है चार्ज माइक्रोग्राम, उसकी फील्ड इधर आएगी, इसका थोड़ा मैग्नीट्यूड में कम होगी। ये वाली 2.5 है, तो इसकी फील्ड इस तरफ आएगी, इसका मैग्नीट्यूड भी बड़ा होगा थोड़ा। अभी दो वेक्टर्स हैं, अगर ये एंगल पता लग जाए तो अंडर रूट ऑफ E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कॉस थीटा, या फिर एंगल से नहीं निकालना है तो ये वाले कंपोनेंट जो है इसमें ये कंपोनेंट बड़ा होगा, ये छोटा होगा, तो डिफरेंस निकाल लो और ये वाले कंपोनेंट ऐड अप हो जाएंगे, है ना। एंगल फिर भी चाहिए ही होगा तुम्हें, है ना। तो फिर इनका वेक्टर सम ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। तो बी पार्ट का जो फील्ड है उसमें लॉट ऑफ कैलकुलेशंस आर देयर, बट दे आर अकॉर्डिंग टू वेक्टर लॉ। ऑलवेज आई टोल्ड यू, वेक्टर क्वांटिटीज में दो क्वांटिटीज को ऐड करना है तो यू हैव टू हैव द हेल्प ऑफ वेक्टर। उनके या तो कंपोनेंट ब्रेक करके, एक्स वाई कंपोनेंट ब्रेक करके, बाद में उनका अंडर रूट ऑफ ई एक्स स्क्वायर प्लस उसका नेट निकाल के, फिर अंडर रूट ऑफ ई एक्स नेट स्क्वायर प्लस ई वाई नेट स्क्वायर, या फिर डायरेक्टली E1 E2 मिल गया, दोनों के बीच का एंगल ले लो cos थीटा, तो अंडर रूट ऑफ E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos थीटा। तो दैट इज द मेथड यू हैव टू डू इट, ठीक है। तो ये ट्राई करो, बी पार्ट भी प्रैक्टिस के लिए। इट मे टेक टाइम, बट you are supposed to know all the methods. ठीक है। This was the question number 14. This is again interesting question. देखो ये वाला question number 12. Let's see. Charge 8 microcoulomb is located at the origin. Calculate the work done in taking a small charge this much from the point P to the Q via R. तो via R जो है, via is immaterial here. via का कोई रोल नहीं है। देखो यहाँ पर चार्ज कितना है, ये Q हो गया। हाउ मच Q इज गिवन, 8 मिली 10 to the power -3, ठीक है। और सपोज x y z, सपोज हमने x एक्सिस इधर लिया तो ये y हो जाएगा, ये z हो जाएगा, सिंप्लिसिटी के लिए हमने। तो y, तो ये q यहाँ कहीं पर होगा, और r जो है, r यहाँ कहीं पर होगा, समवेयर हियर। 6 और 9 है। और फाइनली कहाँ पे लाना है, नहीं p, सॉरी p पहला है, यहाँ पर है p एंड q पर लाना है वाया r, ऐसा है। तो आई टोल्ड यू कंजर्वेटिव फील्ड है, तो path is immaterial, either you bring it direct or go to infinitive और वहां से घूम के आओ। in both cases answer will not change, ठीक है, because conservative, we are dealing with the conservative forces। तो यहाँ पे तुम्हारा r is immaterial, वाया कहीं से जा रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। now tell me how to do this question, बोलो, can anybody tell me how to do, then you can do it on your own। कौन सा चार्ज ला रहे हैं, Q0 ले लो उसको, दिस इज Q0, टेस्ट चार्ज को हम शिफ्ट कर रहे हैं।
-2 इंटू 10⁻⁻9। टेस्ट चार्ज नहीं बोल सकते इसको, बट सिंबल हम वही ले रहे हैं जो थियरी पढ़ी है. वी आर जस्ट so that we can relate the things easily. Could get anybody could get the clue now what to do, how to do. कैसे करेंगे वर्क डन निकालना? तो वी हैव टू गो बैक टू द बेसिक्स. बेसिक फार्मूला लगाना है और पॉइंट चार्ज का फार्मूला लगाना है. बेसिक फार्मूला क्या था? फाइनल पॉइंट को डिस्प्लेसमेंट नहीं, नॉट दैट, पोटेंशियल डिफरेंस का वर्क के साथ. पोटेंशियल डिफरेंस के साथ डील कर रहे हैं हम लोग. पोटेंशियल डिफरेंस, इफ यू रिमेंबर, ए से बी की तरफ गए थे तो हमने क्या लिखा था? वी बी माइनस वी ए. फाइनल कहाँ पे पहुंचा है? क्यू पर पहुंचे. तो क्या होगा? वी क्यू माइनस वी. कहाँ से स्टार्ट किया? पी. तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज. किसको चार्ज को शिफ्ट करें? क्यू नॉट को. इसको शिफ्ट करें. ठीक है, गॉट इट. क्या डेफिनेशन थी? वी बी माइनस वी ए वर्क डन पर यूनिट चार्ज. तो ये हमने फाइनल पॉइंट जो है क्यू है. इसे ओके हमने बराबर लिखा है. लेट मी सी. 8, इट इज 8. कैलकुलेट द वर्क डन इन टेकिंग द स्मॉल चार्ज माइनस क्यू फ्रॉम द पॉइंट पी, जो कि जेड एक्सिस के कोऑर्डिनेट दिख रहे हैं. जेड एक्सिस से स्टार्ट किया हमने. आर वाया आर से लेकर क्यू पर आए. ओके, ये वाई एक्सिस, इधर हमने एक्स ले लिया. ठीक है, ठीक है. व्हाट नेक्स्ट? व्हाट नेक्स्ट बोलो. ये तो हो गया हमारा फार्मूला टू बी यूज्ड. क्लियर? तो W निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे. क्यू नॉट वी क्यू माइनस वी पी. ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, क्यू नॉट को इधर भेज दिया. क्यू नॉट इज गिवन -2 इंटू 10⁻⁹. पुट कर देंगे माइनस के साथ. ठीक है, बिकॉज वी आर डीलिंग विद द स्केलर क्वांटिटीज, साइन should be written, minus sign should be written. What about VQ minus VP? VQ क्या है? पोटेंशियल एट Q ड्यू टू हु? कौन किसके पोटेंशियल में शिफ्ट कर रहे हैं? इसका. Q का कुछ पोटेंशियल होगा, स्मॉल q का Q पर, वो निकाल लेंगे. कैसे? KQ/R वाले फार्मूले से. ये डिस्टेंस कितना है? Y दो, Q का Y को 4 है. सेंटीमीटर में मीटर में कन्वर्ट कर लेना. तो KQ/R वाले फार्मूले से निकलेंगे ये. और ये डिस्टेंस कितना है? P इनिशियली वाज 3. ये 3 था. 3 इंटू 10⁻⁻² हो जाएगा. तो दोनों के पोटेंशियल निकाल लो अभी, फिर इसमें वैल्यू पुट कर देंगे ना. तो VQ निकाल देंगे. KQ/OQ. ये डिस्टेंस कितनी है? OQ. ठीक है, ये निकाल लेंगे. या फिर यहाँ वैल्यू पुट कर दो. K कॉमन ले लो. अच्छा, डिस्टेंसेस भी डिफरेंट है ना. ओनली K विल बी कॉमन, दैट्स ऑल. और VP विल बी KQ/OP. ठीक है, ये वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दो. ये इधर, ये इधर. ठीक है. तो दिस क्वेश्चन कैन बी इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन आल्सो, क्योंकि दिस इज नॉट द डायरेक्ट क्वेश्चन. यू हैव टू थिंक लॉट मेनी थिंग्स इन दिस, है ना. ठीक है, तो इसका जो पोटेंशियल है यहाँ पर वी क्यू पर, और यहाँ पर इसका पोटेंशियल VP होगा. पोटेंशियल मिल जाएंगे. फिर बेसिक फार्मूला, मतलब दोनों फार्मूले लग रहे हैं. बेसिक ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस प्लस पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, एंड लोकेशंस भी आइडेंटिफाई करनी है, कितना डिस्टेंस है और कौन से चार्ज का लिखना है. जो ये चार्ज है, ये वाला चार्ज अपनी फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है ऐसे, है ना, सभी डायरेक्शन. तो हमें यहाँ से यहाँ तक, तो वेदर यू कम ब्रिंग इट डायरेक्ट और टेक इट टू R or take it to infinite, answer will not change. I hope कि अभी हो जाना चाहिए ये क्वेश्चन. All the points are very clearly explained. Think about this question. Revise the notes. पीछे जो लिखा है. You will get the right answer.
तो यू हैव टू बी वेरी क्लियर, नहीं तो साइन क्या माइनस प्लस के कंफ्यूजन शुरू हो जाते हैं बहुत सारे इसमें इस चैप्टर में. तो वी आर गोइंग स्लो, ईच पॉइंट वी आर नोटिंग डाउन so that we should not get confused any time. Minus plus का confusion नहीं होना चाहिए. You have to complete this question also. What about question number 15? Have you seen this question? Have you seen Yes, anywhere sir. this You question? yes, sir. You have Ah. given a similar question in homework. Yes. Yesterday जो homework वाला question था same है ये. So you can just check it with your. तो उसमें मैंने A and I think R1 R2 small and capital R दिया था. यहाँ पे R1 R2 दिया है. It is in this chapter in fact. ठीक है, तो same question है. You can just check the answer by solving yourself. And second part is also discusses the field inside the cavity with no charge is zero, even if the shell is not spherical but has any irregular shape. Gauss's law से हम जब Gauss's law apply करते हैं तो it is valid for regular shape or irregular shape. तो उसमें कोई condition नहीं है Gauss's law में, it should be spherical always. Spherical में थोड़ा easy हो जाता है to get the calculation done. Otherwise non-spherical में solid angle के concept से करना पड़ता है. Solid angle of any closed surface comes to be 4 pi. 4 pi आता है, but it is beyond our course, तो इसलिए ज़्यादा हम उस पर discuss नहीं कर रहे अभी हम. So this is same question 15, so you can just check the answers in your textbook. तो कभी-कभी board examination में potential due to dipole is directly given this. Potential due to dipole उन्होंने क्या किया है, सीधा एक जनरल पॉइंट P पर दे दिया है जो कि सेंटर से एंगल थीटा बना रहा है. बट बोर्ड्स एग्जामिनेशन में दे आस्क यू एट एक्सियल पॉइंट और इक्वेटोरियल पॉइंट. तो ये सब इतना बड़ा डेरिवेशन करने से बेटर यू कैन डू इट डायरेक्टली. तो लेट्स सी हाउ कैन वी डू डायरेक्टली इफ एक्सियल पॉइंट एंड इक्वेटोरियल पॉइंट इज आस्क्ड. तो यू डोंट हैव टू डू दैट डेरिवेशन, देन डायरेक्टली कर सकते हैं. देखो जैसा कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का किया था ऑन एक्सियल पॉइंट, तो वही पॉइंट अभी जैसे न्यूमेरिकल कर रहे हैं, इट इज सिमिलर टू दैट ओनली. टेकिंग द डायपोल, टेकिंग द पॉइंट एंड एक्सियल पॉइंट, डिस्टेंस कहाँ से रहेगी आर से, तो दोनों का पोटेंशियल लिख देंगे, ऐड कर देंगे, सिंपल. तो ये टॉपिक करके हम वाइंड अप कर देते हैं. इट इज नॉट कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक, इजी टॉपिक है बिल्कुल. पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल, हमने डायपोल ले लिया, माइनस क्यू इधर ले लिया, प्लस क्यू इधर ले लिया. ठीक है, तो इसका पोटेंशियल पॉइंट पी पर, सेंटर से डिस्टेंस आर होती है तो ये भी ऐड हो जाएगी ये. ठीक है, तो लेट आर बी द distance of axial point from the midpoint of the dipole and 2a the dipole length. So potential at axial point will be potential due to plus q and potential due to minus q. प्लस की डिस्टेंस यहाँ से लेंगे, देखो ये प्लस है, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, आर में से ए माइनस हो जाएगा, टोटल इज आर, ये ए माइनस कर दो तो आर माइनस ए हो जाएगा. और जब इसका पोटेंशियल लिखेंगे तो आर प्लस ए हो जाएगा यहाँ पर. ठीक है, तो दोनों का पोटेंशियल लिख लिया, कॉमन ले लिया के क्यूब, इसमें माइनस लिखेंगे. देखो इलेक्ट्रिक फील्ड में हम डायरेक्शन लिखते थे, उसकी वजह से माइनस आ रहा था, पर यहाँ पे डायरेक्शन नहीं है लेकिन माइनस चार्ज है, उसकी वजह से माइनस आया. ठीक है, तो ये के क्यू कॉमन आ गया बाहर, ब्रैकेट में हमने एलसीएम ले लिया, तो ये बचेगा ऊपर, इसमें आर आर कैंसिल हो जाएगा, 2a बचेगा. ठीक है, तो के क्यू इंटू 2a नीचे ही आ जाएगा, तो q इंटू 2a इज कॉल्ड पी डायपोल मोमेंट, और नीचे
दोनों को स्क्वायर कर लेंगे, यहाँ पर दोनों को सिंप्लीफाई कर लेंगे, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, बस यही आंसर हो गया। ठीक है, तो यू कैन जस्ट सी, एंड इक्वेटर का खुद ही ट्राई करना है। ओके, ये होमवर्क में करना है। ठीक है, यहाँ पे मैं एंड कर रहा हूँ। यू सी, ये आ गया डेरिवेशन। ठीक है, नाउ इफ फॉर शॉर्ट डायपोल आर इज मच ग्रेटर देन हाफ ऑफ द डायपोल लेंथ, तो ये छूट जाएगा, दिस विल बी नेग्लेक्टेड, आर स्क्वायर नीचे बचेगा। तो पोटेंशियल ऑफ डायपोल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। इसमें भी देखो एक पावर बढ़ गई, सिंगल पॉइंट चार्ज में 1/r होता है, शॉर्ट डायपोल में 1/r² है। और फील्ड में भी एक पावर बढ़ गई थी, फील्ड में क्या हो गया था, r³ हो गया था। पॉइंट चार्ज में r² होता है, उसमें r³ हो गया था। ठीक है, तो दिस इज डन, एंड इक्वेटोरियल पॉइंट पर खुद ही करना है, दिस इज होमवर्क। So these questions in board examination can be asked, ये 3 marks में, ये 2 marks में। Tomorrow we'll see at any general point, neither axial nor equatorial. So that is lengthy derivation, we'll do it tomorrow. You can ask your doubts if you have any.